آج ہم پڑھیں گے ڈاکٹر سید مبین زہرا کا مضمون کربلا کا پیغام سمجھنے کے لیے ہر روز کربلا سے گزرنا ہوگا۔ کربلا کا پیغام سمجھنے کے لیے ہر روز کربلا سے گزرنا ہوگا۔ کربلا کا پیغام ہی یہی ہے کہ ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف ہر وقت انسان کو کربلا سے گزرنا چاہیے۔ کربلا کا پیغام سمجھنے کے لیے ہر روز کربلا سے گزرنا ہوگا۔ کربلا کا پیغام ہی یہی ہے کہ ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف ہر وقت انسان کو کربلا سے گزرنا چاہیے۔ ان دنوں ہم لوگ پیاسوں کا غم منا رہے ہیں۔ کربلا کے وہ پیاسے جنہوں نے حق کے تحفظ میں ہزاروں کی ظالم فوج سے اس طرح مقابلہ کیا کہ کربلا کے میدان میں جیتنے والی فوج آج تک اپنی شکست کی آواز سن رہی ہے۔ سچائی کی جیت ہی اسی طرح ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کربلا کو محسوس کیا ہے؟ کربلا ایک واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ ہر اس حق پسند کی زندگی ہے جو ظلم سے ٹکراتے ہوئے انجام کی فکر نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان میں اتمام حجت کے طور پر مصالحت کی کوشش کی تھی، جس پر ظالم نے اپنی بیعت کی شرط لگا کر اپنے غرور کا اعلان کر دیا تھا، جس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ہرگز نہیں، زیادہ سے زیادہ موت ہی تو آئے گی۔ یہی ہے حق کے اظہار کا طریقہ کہ خدا کی راہ میں حق کی بلندی کے لیے اگر نیزے پر بھی اپنا سر بلند کرنا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ لیکن کیا آپ نے اپنی زندگی میں کربلا کو محسوس کیا ہے؟ کیا آپ نے زندگی میں کربلا کو جینے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ کربلا جیتے نہیں ہیں اور صرف کربلا کے شہداء کو یاد کرتے ہیں تو پھر کربلا کے شہیدوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ دراصل کربلا کا پیغام ہی یہی ہے کہ ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف ہر وقت انسان کو کربلا سے گزرنا چاہیے۔ صبر کو اپنا ہتھیار بنا کر کبھی بھی ظالم کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ مخالف سمت میں چاہے اپنے قبیلے، اپنے پریوار کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اس سے بے چین نہیں ہونا ہے اور نظر صرف حق پر ہی ہو۔ کربلا کے میدان میں جو امام مظلوم کے ساتھ ان کے اوپر قربان ہونے والے ساتھی تھے، ان کے بہت سے اقربا اور اعزاء ظالم فوج میں بھی رہے ہوں گے، مگر جب حق کا ساتھ دینے کی بات آئی تو انہوں نے ظالم کی حمایت نہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی تب جب امام مظلوم کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے اور دشمن کا لشکر ہزاروں میں تھا۔ یہی کربلا ہے۔ آپ تنہا پڑ جائیں اور حق پر ہوں تو تعداد اہم نہیں رہتی بلکہ حق اہم ہوتا ہے۔ سوال وہی ہے، کیا آپ کربلا جیتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کسی موقع پر کربلا کو محسوس کیا ہے؟ کیا آپ کی زندگی کبھی کربلا سے ہو کر گزری ہے؟ اگر سچ پر چلیں تو ہر دن آپ کے لیے کربلا سے کم نہیں ہے۔ جو کربلا کو سمجھتے ہیں وہ کربلا پر چلتے ہیں۔ ان کی زندگی کربلا ہی ہوتی ہے۔ وہ حق کی آواز بلند کرتے ہوئے انجام کی فکر نہیں کرتے، بھلے ہی ان کا کتنا ہی نقصان نہ ہو جائے۔ اس کے لیے جب ہم کربلا کے پیاسوں کو یاد کر رہے ہوں، کربلا کے شہیدوں کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے اشک ریزی کر رہے ہوں تو ہمیں اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم جانے یا انجانے میں کربلا کے شہیدوں کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں۔ ہمیں کربلا کا عظیم پیغام سمجھنے کے لیے اپنی زندگی میں
हर रोज़ करबला से गुज़रना चाहिए। जब हलाल या हराम में तमीज़ कर रहे हों, जब नेक कामों पर खर्च कर रहे हों, जब खैर के काम कर रहे हों, तो हमें ये यकीन तो होना ही चाहिए कि हम इन नेक कामों पर जो खर्च कर रहे हैं वो हमारी हलाल की कमाई में से ही है। ये इसलिए लिखना पड़ रहा है कि अभी शकील भाई ने अपने मौज़ूए गुफ्तगू में बड़ा अहम सवाल उठाया है कि बहुत से लोग ऐसे लोगों के नाम पर प्रोग्राम करते हुए भी हराम की कमाई का इस्तेमाल करते हैं, जिनका नाम फरिश्ते तक एहतराम से लेते हैं। हम क्यों लोगों से सवाल नहीं करते कि आप जो ये अपनी हद से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं नेक कामों पर, क्या ये हलाल है? कोई अगर सवाल करे तो उसमें बुरा मानने की बात भी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत तो आपसे हर बरस आपकी आमदनी का हिसाब लेती ही है। आप टैक्स अदा करते हैं, मुल्क के कवानीन का एहतराम करते ही हैं। एक एक पाई का हिसाब आप जब हुकूमत को देते हैं तो फिर अपने लोगों के सवाल पूछने पर बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई बुरा मान भी ले तो हक़ का तकाज़ा तो यही है कि अगर आपको मालूम है कि कहीं कुछ गलत हुआ है तो फिर आपसे करबला जो कहती है वही कीजिए। यही करबला को जीना है। करबला प्यासों की ऐसी हालत का नाम है कि जहाँ प्यास की प्यास ख़त्म हो जाती है। रहती दुनिया तक करबला ने हमें ये सबक दिया है कि प्यासों की प्यास बुझाना सवाब का काम है। लेकिन आज के ज़माने में हम करबला से कितना दूर होते जा रहे हैं। इसका सबूत ये है कि जिस मुल्क में लोग प्याऊ लगाते थे वहाँ अब बोतलों में पानी को बेचा जा रहा है। बाज़ार ने करबला के प्यासों को एक बार फिर प्यासा करने का काम किया है। पानी का बाज़ार बंद होना चाहिए, साथ ही पानी की बर्बादी भी बंद होनी चाहिए। खुदा ने हवा पानी वाफिर मक़दार में हमें बख्शा है, लेकिन बाज़ार पानी को भी बर्बाद करने पर तुला है और हवा को भी पोल्यूशन से बर्बाद कर रहा है ताकि इसका भी बाज़ार बनाया जा सके। अगर हम करबला के प्यासों की प्यास को समझते हैं तो हमें हकीकी ज़िंदगी में ख़ुद को पानी की बर्बादी से बचाना होगा और साथ ही अपने चाहने वालों को भी पानी की बर्बादी से रोकना होगा। पानी की बर्बादी अगर करबला की प्यासों का चाहने वाला करता है तो वो साबित करता है कि उस तक करबला की प्यासों का पैगाम नहीं पहुंचा है, या अगर पैगाम पहुंचा भी है तो उसने उसे अपनाया नहीं है। हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर अगर करबला नहीं दाखिल हो पाती है तो इसका मतलब ये है कि हम प्यासों के पैगाम को सही तौर पर कबूल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए करबला के प्यासों को सच्चा खराज भी यही है। सच्चा खराज ये भी है कि हम पानी की बर्बादी को रोकें और दूसरों को भी इससे रोकें। साथ ही देखा गया है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कुदरती आबी ज़ख़ायर हैं, इनको पाट कर वहाँ पर इमारतें बनाने का चलन आम होता जा रहा है। ये आबी ज़ख़ायर पानी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कम से कम वो लोग जो करबला के शहीदों को मानने वाले हैं, जो हुसैन का गम मनाते हैं, जो रसूल के नवासे की क़ुरबानी को याद करते हैं, उन्हें ये यकीनी बनाना चाहिए कि वो इस किस्म के गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जहाँ आबी ज़ख़ायर पर नाजायज़ तजावुज़ात से इमारतें बना दी जाती हैं और इस तरह पानी के एक ऐसे ज़ख़ीरे की बर्बादी का सामान कर दिया जाता है जो प्यास बुझाने के काम आ सकता था। ये अच्छी बात है कि हम मुहर्रम में प्यासों की याद में पानी की सबीलें लगाते हैं, लेकिन हमें ये सिलसिला पूरे साल जारी रखना चाहिए। सिर्फ मुहर्रम के दिनों में ही लोग प्यासे नहीं होते हैं, उन्हें पूरे बरस और ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में प्यास बहुत सताती है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग अपनी गाड़ी या स्कूटर में पानी की बोतल भर कर रख लेते हैं और किसी सिग्नल पर या कहीं कोई प्यासा नज़र आता है तो उसे पानी दे देते हैं। एक सोशल साइट पर देखा था कि एक साहब ने अपने स्कूटर के पीछे ही वाटर कूलर बांधा हुआ है और वो प्यासों को इससे पानी पिलाते रहते हैं।
प्यासों को खराज अदा करने का ये क्या बेहतरीन तरीक़ा नहीं है। इसलिए सवाल है कि क्या आप करबला जीते हैं? अगर आप किसी का हक़ मार कर उससे होने वाली आमदनी को किसी नेक काम पर खर्च करते हैं तो क्या ये दुरुस्त होगा? हमें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। करबला एक ऐसा सबक है जिसे स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाना चाहिए। नई नस्ल को करबला के बारे में मालूम चलना चाहिए कि किस तरह हक़ पर चलने वाले जुल्म से टकराते हैं। करबला आज की दहशत ज़दा दुनिया के लिए मशाल राह बन सकती है, क्योंकि करबला दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पहली बुलंद आवाज़ है जिसकी बाज़गश्त से आज भी जुल्म के महल कांपने लगते हैं।